Yeah. Yes. To- Anyone else will be joining this? No, no, no. We are planning to join with my co-founder Mudit, but actually he's busy somewhere else, so I'm only joining over here. Cool, 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 cool. So we'll start with my intro. Okay. So I'm Yes. the co-founder for GH Camps. My name is Ankush Gupta. Basically, Rohan is busy with some other stuff. So, Okay. and moreover, like I take care of like automations and all, like the workflows, like the brain behind workflows and all. And he takes care about the content strategy, like what should be going on LinkedIn and all, as depending upon the like ICP and all. So that's how we like divide the work. Rest, like I have a background of somewhere around 8, 9 years in this field. I started with the PR marketing. Then in PR, as you know, like personal branding is important. So then we thought to go on LinkedIn, and from there we started about creating course for people. And once we saw that people are paying us for those courses, but the issue was they were not taking the actions. So we were getting sales on daily basis for course, but the like growth was not there, like because they were not testing, so we were not able to see like whether our strategies or whatever we are telling them is working or not. So it was like a dumb money. So that's why we pivoted that to one-on-one calls for founders or for real people who are facing real issues, which like with whom we can work and grow together. So that's how this process started. And yeah, that's how we are taking somewhere around on a monthly basis, we are taking these sort of strategy calls, 50, 50, 60 around calls Oh, on a great. monthly basis. Yeah. So yeah, we'll be love to know more about you. I think like you have some sort of tax related business and a software. Yes. So we are a chartered accountants over here, and we normally perform our duties over here in India itself right now. But so a years back, we thought to get our what I say is currency arbitrage and to get more professional works and something like that, we started a outsourcing firm in the name and style of Senflow Global Private Limited. We had a few clients, but that mostly the clients came through referral and through friends and relatives. So we get that client, but now to start with the professional and to have a professional journey over here, so we planning to have our own clients to be onboarded from our own side by with the help of a marketing or a digital presence over there. Majorly, we cover USA market. Australia is one of the country. UAE has been there, and there's some small works of a UK country has been there. So these four countries we are normally looking after. My major forte is mostly into uh, technology and the finance, where I made normally finance with technology, and we prepare. So I normally prepare Power BI dashboards and all these things where normally we can know what are the projects which are profitable, which are loss, or multiple. If you have a multiple business, then all you get all your summary on a one pager or only one application. You normally goes over there. In the back end, many other technologies works over there. So this is the thing, and our my two partners, Mudit and Rushabh, normally looks after taxations, bookkeeping, and this all other sort of services. Cool, cool. So what exactly you are looking from this call? Like what sort of help or what exactly you need from us? So normally we want to have a digital presence over there. In the US market and something like that, where normally and we want to generate some of the leads from these markets, so we get some business from that, and then definitely we can provide our services to that countries. What would be like, see, uh, whatever you are telling me, it's a very broad niche. Okay, so first of all, basically we love to work with those who have the winning offer. ओके. Okay. तो लेट्स सपोज पवन मेरे को बोलते हैं कि भाई अपने को ये बेचना है पर्टिकुलरली. लेट्स सपोज यू टोल्ड मी अबाउट डैशबोर्डिंग, पावर बीआई डैशबोर्डिंग. इट्स अ ह्यूज मार्केट इन एवरी नीश.
every CEO, founder, manager will take it. Okay. And Yes. like if you can connect your pitch with Claude and AI and something like this, like we use AI to easily generate these sort of dashboards and give it to you, and like some sort of winning offer. So in that way, the converge the real conversion is really fast. And if we are trying to find the market or find the offer, then it takes more time. आर यू गेटिंग? लाइक अभी अब मेरे को सर्विस पता है कि मुझे ये मेरा पेन पॉइंट है और ये सेल करना है। तो एक फेज तो हम्म ये होता है कि भाई मैं गया, मैंने मांगा और मैंने दे दिया। एक होता है हम्म राइट नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग आइदर यूएस, यूके और वट एवर द निशेस, एंड देन द पेन पॉइंट कि कितने लोगों को जिनको मैं, जैसे आपने मुझे बताया फिनटेक, ठीक है कि आप फिनटेक में लोगों को अपना सोल्यूशन देना चाहते हैं, बट दोज पीपल आर ऑलरेडी स्मार्ट, ठीक है, उनको टेक वेक का भी पता है, ठीक है। तो क्या वो डैशबोर्डिंग लेंगे? आप समझ रहे हो? तो मैं वो समझ रहा हूँ कि हैव यू डन दैट सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग, डू यू हैव एनी डेटा और व्हाट, एट व्हाट स्टेज दिस ऑफर इज, लाइक डू यू हैव रियली लाइक 15-20 clients for the what exact service you want to pitch? सो पावर बीआई और इन सब में कैसा है कि जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, सी जो डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड है वो तो ठीक है, बट उसके बाद भी क्या होता है, कुछ कॉस्ट कॉमन पूल से आते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल एमडी सैलरी या सीईओज सैलरीज, फिर दूसरे ऑफिस के ऑफर्स और वो सब चीजें आते हैं। सो वी नॉर्मली हैव वन ऑफ द वी नॉर्मली पुट अ फॉर्मूलाज ओवर देयर वेयर वी अंडरस्टैंड द बिजनेस, और हम उसको बाइफरकेट करके उसके प्रोजेक्ट्स के अंदर नॉर्मली नेट प्रॉफिट तक हम बताते हैं वैसा। सो अवर निशीज के नॉर्मली ऐसा नहीं है कि आपको एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आपको सिर्फ ग्रॉस तक बताएंगे, हम नेट तक बताएंगे कि आपने बिजनेस में कितना कमाया, ओवरऑल कितना कमाया, तो वो प्लस माइनस है। तो वो सारी चीजें, सो इट्स नॉर्मली कम्स अंडर सीएफओ सर्विसेज, वेयर नॉर्मली अ फ्रैक्शनल सीएफओ और वर्चुअल सीएफओ काइंड ऑफ थिंग्स। वेयर नॉर्मल अगर उनको कोई नया प्रोजेक्ट भी करना है तो उसको हम एनालिसिस करते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स पे भी एनालिसिस करना है, तो वो सारी चीजें हम वी कैन प्रोवाइड ओवर देयर। Got it. बाकी So kind of and मतलब basically our offer will be to provide fractional CFO to these firms, like यस सो है ना? टेक टेक वाले बंदे जो, सो द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स काम मोस्टली टेक में होते हैं, तो टेक वालों को फायदा हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमको होलसेल बिजनेस करना है तो सीपीए फर्म्स है, वो भी हमारे लिए आइडियल कस्टमर्स है। सीपीए फर्म्स कैन बी आल्सो अवर आइडियल कस्टमर्स, वेयर नॉर्मली उनके पास पहले से क्लाइंट्स हैं और वो आउटसोर्सिंग करेंगे, ताकि अब कैसा है यूके में कैसा हो रहा है कि वो थोड़ा महंगा है उधर का रिसोर्स, समझ तो गया, वो इंडिया आर्बिट्राज है में। बेसिकली, रिसोर्स यस आर्बिट्राज है। हमारा एक बैंगलोर में एक मेरी फ्रेंड है, उसका भी यही बिजनेस है। वो यूएस यस की फर्म्स जो उनके पास वो होते हैं, वो उनका फिर यहाँ पे बैठा के वो लोग करवाते हैं सारा कुछ। मेरा मतलब आप पवन भाई मेरा ये समझिए, अगर मतलब कोई भी ऑनबोर्ड होता है, मैं या आप किसी की भी हेल्प ले तो वो भी चार्ज करेगा आपको, ठीक है। बट इन इन टर्म्स ऑफ आरओआई तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हमारे ऑफर्स, मतलब आपको श्योरिटी हो कि यार अंकुश, ये मेरे 3 ऑफर हैं। एक वर्चुअल सीएफओ दूंगा मैं, इस मार्केट यस को दूंगा मैं, ठीक है, इससे कम, मतलब अगर वर्चुअल सीएफओ लेट्स सपोज मेरा है $500 का महीने का है, जो भी है, ठीक है, मुझे उस पर ट्रस्ट बनाना है तो मैं उसको $50 का डैशबोर्ड बेचूंगा पहले, ठीक है, ठीक है। कि भाई तू मेरा $50 का डैशबोर्ड ले, सर्विस देख हमारी, तेरे को बढ़िया लगेगा। अब फिर हमने उस डैशबोर्ड से उसको प्रॉब्लम दिखवाई कि भाई, मतलब मैं एक फनल में लेके जा रहा हूँ उसको कि 50 से अंदर आया, अंदर के आने के बाद देख भाई तेरा इतना नुकसान हो रहा है, तो एक काम कर, तू मेरी ये वाली सर्विस ले, वर्चुअल सीएफओ, जो तुझे ये जो भी है ए बी सी डी करके देगी और तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। आप समझ रहे हो? ठीक है। तो अगर इस तरीके का कुछ ऑफर बना हुआ है, ठीक है, तो भाई हम लोग, मतलब हम आपको बता भी सकते हैं, और तभी आपको किसी मार्केटिंग की करवा मतलब जरूरत भी होगी। अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड मार्केट रिसर्च टू फाइंड आउट द विनिंग सर्विस, विनिंग ऑफर, विनिंग ओके नीश, मतलब विनिंग लोकेशन जियो, ठीक है ना, और टिकट साइज कि भाई वो कितने में बिकेगा। ओके। अदरवाइज आप मतलब समझ रहे हो, आप गलत जगह पे पैसा लगा दोगे। हाँ सही है। जैसे मतलब आईटीआर का सीजन है, आईटीआर में तुम जीएसटी भर रहे हो, मतलब एक बहुत ही हाँ एक, वो मतलब हाँ सही है वो आप दिशा हाँ, दूसरी डायरेक्शन दूसरे चले जाएंगे तो कोई यस, मतलब ही नहीं है। यस, तो होगा ये कि मैं तो आपको बोल दूंगा जी, पवन भाई इतने पैसे लगेगा, मेरा मेरी सर्विस तो ऑन हो गई, ठीक है, आप मेरे से करवाओगे, मैं पिच करना शुरू करूंगा, फिर बोलेगा अच्छा ये ऑफर नहीं चल रहा, लाओ ये बदल लो, फिर ये तो हमारा काम तो शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट नॉर्मली क्योंकि हम उन लोगों के साथ जिनके साथ काम कर रहे हैं वहाँ ये दिक्कत आती है, तो हम सीधा बोलते हैं कि भाई तुम हमें कैसे बोल सकते हो कि हम तुम्हारे बिजनेस की बढ़िया सर्विस ढूंढ के निकालें।
मतलब आप समझ रहे हम्म। हो, मैंने थोड़ी ना बिजनेस किया है तुम्हारा वाला, मैंने मेरा काम किया है। मेरे काम से सही है। मैं वो ग्रोथ ला सकता हूँ, रिजल्ट, पर मेरे को पता तो हो ना कि बेचना क्या है। आप समझ सही रहे है। हो? तो पहली चीज तो ये प्रॉब्लम मेरे को जो अभी समझ में आ रही है इस कॉल में, वो ये है कि वी नीड टू फाइनलाइज एंड लॉक एटलीस्ट 3 विनिंग ऑफर्स। ओके। ओके। वन लो टिकट साइज, देन 2 हाई टिकट साइज, कि अगर मेरा लो टिकट साइज लगता जा रहा है तो मैं उसको एक को भी हाई टिकट में मार गया, तो मेरे को मेरा आरओआई आ जाएगा। ओके। कि मान लो एक वन टाइम सर्विस हो गई जहाँ पे आपने कुछ उसका छोटा मोटा काम कर दिया, कोई ऑडिट शॉडिट या कोई जैसे अपने यहाँ इंडिया में वन टाइम काम आईटीआर होता है साल में एक बार, वैसे सही उनका, है। वैसे कोई अपन ने उनका ढूंढ ढांड के भर दिया पर्चा, कोई भी फॉर्म वॉर्म भर दिया, कुछ कर दिया, तो उनको लगेगा हम्म। ठीक है चलो यार, दिस टीम इज रियली गुड, इनके साथ हेल्प में रहते हैं। देन फिर धीरे धीरे हमने उसको 2-3 हफ्ते बाद अपना गेम समझाया या कुछ करा, तो वो ले गए। दूसरी अप्रोच हो सकती है भाई, डायरेक्ट बड़ा ऑफर बनाया। ठीक है, पहले डायरेक्ट बड़ा ऑफर बनाया ये $500 $1000 वाला, और डायरेक्टली अपने को आपको ट्रस्ट वाला एंगल करके हमने वो भी कर सकते, मतलब वो बनाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नॉर्मली कौन सा मार्केट चूज करना है, आप किस में कंफर्टेबल हो, यूएस में, यूके में, जो भी, ऑस्ट्रेलिया, जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। ओके। फिर हमें फाइनलाइज करना पड़ेगा कि ओके, ये गेम सॉर्टेड दिख रही है हमें। ठीक है, कि ये गेम हमें लग रही है कि ओके, जिधर को अपने को जाना है, फिर हम उस तरफ स्केल कर सकते हैं। ठीक है। अब ओके। उसमें हमें चाहे लिंक्डइन से जाना हो, मतलब वैसे तो इन लोगों को सबसे अच्छा लिंक्डइन से ही आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है। ओके। तो उसमें हम लोग कॉन्टेंट, उसमें दोनों है, इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों कर सकते हैं। इनबाउंड का मतलब होता है कि हम कंटेंट डालेंगे। ठीक है। और रेलेवेंट, हम्म। मतलब रेलेवेंट कंटेंट होगा, हमारे आईसीपी के हिसाब से पेन पॉइंट्स होंगे उसके, उस कंटेंट में लोग इंटरेक्ट करेंगे, हमसे कोई टेम्पलेट मांगेगा या कोई कुछ मांगेगा, ऐसे कुछ चीज़ें मांगेगा। ठीक है। एंड देन सेम वे में हम आउटबाउंड करेंगे, जो रेलेवेंट लोग हैं उनको हम लोग रेलेवेंट तरीके से रीच आउट करके, भाई जो भी सीएफओ है, जो भी होते हैं वो फाउंडर, सीईओ आपके नीश के, हम उनके लिए एक आईसी, पूरा एक ऑटोमेशन है हमारे पास कि वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन एक्टिव है कौन नहीं है, किसने पहले पैसा खर्च रहा है, जो मान लो हायरिंग कर रहा है हम्म। या कोई भी चीज़ें कर रहा है, तो उसको जब वो खर्चा कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है, हिसाब चाहिए। तो हम उसको हाँ। आरओआई दे सकते हैं कि भाई देख, तूने रिसेंटली पिछले 3 महीनों में इतना पैसा खर्च खर्च दिया, आरओआई पता है। हाँ। ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे देख भाई ये मेरा डैशबोर्ड है, समझ रहे हो। तो ये सब तो हम्म। हम कर सकते हैं, और ये मेरे हिसाब से आपके लिए चल भी जाएगी, आराम से रिजल्ट आएगा आपको। बट बस मैं वही समझा रहा हूँ कि आप वो ढूंढ लो, और अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो उसका तरीका क्या है कि आप पहले 3 हफ्ते 2 हफ्ते ये ढूंढने की सर्विस के अंदर इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम, आप अब एक फॉर्म भरोगे। ठीक है, जिसके अंदर हमें समझ में आएगा कि आप क्या अचीव, मतलब क्या बेचना चाहते हो, जो, क्योंकि आपको देखना है कि इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट। सही है। ठीक है। वो ढूंढने के बाद हम मार्केट में सारे लोग जो उस रेलेवेंट चीज़ पे ऐड चला रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं उनको निकालेंगे। उनको निकालने के बाद हमारी टीम उनसे, या आप, आपकी टीम, मतलब हम उनके साथ आपकी कॉल बुक कराएंगे, आप उनसे एज अ खरीदने जाओगे। ठीक है। ओके। आप उनसे जब कॉल लोगे 20-25 खरीदने वाली, ठीक है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि अच्छा वो ये ऐसे बेच रहे हैं और कितना बिक रहा हम्म। है। समझ रहे हो ना, वो जितने डिपेंडिंग अपॉन ऐड। तो वो काइंड ऑफ सर्विस विनिंग ऑफर की रिसर्च होगी। वो विनिंग ऑफर जैसे ही आपको लॉक हो गया कि हाँ यार ये तो ओके है मेरा, फिर हम अपने कैंपेन पे शुरू कर देंगे। ओके। ठीक है। क्योंकि इसमें आपका पैसा बचेगा। ठीक है। अ- बाकी के अंदर क्या है कि मतलब हमें, मतलब मुझे, हमारी सर्विस क्या होती है, हमारी सर्विस सिंपल है, हम आपको लिंक्डइन से रिजल्ट निकाल के देंगे। ठीक है। आप हम्म। हमें जो बताएंगे कि सर मैं ये XYZ बेचता हूँ, हम XYZ को कंटेंट में ड्राफ्ट करेंगे, हमारे कंटेंट पे एंगेजमेंट आएगी, एंगेजमेंट से लीड्स बनेंगी, लीड्स आपके लिए कॉल बुक होंगी, या जो भी आपका फनल है वो हो जाएगा। ठीक है। अगर वो बहुत ही वोलेटाइल है कि मतलब इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, कि कहीं हम कह रहे हैं कि हम ये भी करते हैं, कहीं हम कह रहे हैं ये भी करते हैं, कहीं हम, तो जो प्रोफाइल्स होती है ना वो डाइल्यूट हो जाती है कि बंदा ये एक्सपर्ट नहीं है इसका। ओके। आप समझ रहे हो, कि मेरे को ये दिखाना है कि पवन इज द एक्सपर्ट फॉर वर्चुअल सीएफओ, और ओके। मुदित इज द एक्सपर्ट फॉर लाइक बीआई डैशबोर्ड्स। ओके। सो इन दैट वे इफ वी कैन गो, तो अपने को अच्छा गेम है। ओके। समझ रहे हो। तो अपने को अच्छी रीच है, अच्छा गेम है। अदरवाइज होगा ये कि आप पैसा भी लगाओगे, टाइम भी लगाओगे। ठीक है। वो आपको, फिर आपको ना करके सीखना पड़ेगा कि मतलब आप कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर आप उसके हिसाब से, आप समझ रहे हो ना, मतलब आप भी देखो ना, आप किसके साथ कॉल पे जाना चाहोगे। आप जैसे मेरे साथ आए हो, आपने लिंक्डइन का कुछ देखा होगा, आपने देखा होगा कि यार रोहन या हम लोग की टीम लिंक्डइन पे कुछ करती है। ठीक है, लिंक्डइन से हम्म। लीड, तो आपने वो, आप मार्केटिंग के लिए नहीं आए, आपने लिंक्डइन स्पेसिफिक कुछ चूज किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी।
You have chosen a like a targeted method to grow. ओके। The same way the people, the consumer, like the आपका जो buyer होगा वो भी आपको तभी चूज करेगा when you are targeted, when he is looking for that service and then you appears and then it closes. नहीं तो पावर बीआई में भी उसमें भी नीश चाहिए कि हमको कौन सी इंडस्ट्री में जाना है, वो जरूरी नहीं है कि वो चलेगा? नहीं नहीं चलेगा यार, वो उतना देखो, मेरे हिसाब से डैशबोर्डिंग जो होती है जितनी मैंने देखी है, डैशबोर्डिंग इज ओवरऑल अ टूल फॉर फाउंडर्स, लाइक फाउंडर्स या जो मैनेजर्स हैं, ठीक है। एंड इट कुड बी अबाउट एनीथिंग, इट कुड बी ई कॉम डैशबोर्डिंग, इट कुड बी फाइनेंशियल डैशबोर्डिंग, इट कुड बी अटेंड, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। सही है। आपने आपने 15-20 टेम्पलेट बना दिए, ठीक है, और उसके हिसाब से जनता को आप अपने हिसाब से संभाल मतलब पिच करने लग रहे हो, ठीक है। एंड वो व्हाट यू डू, लाइक आप गए एक एक कॉल पे गए, ठीक है, आपने पहले समझा उसकी रिक्वायरमेंट, देन यू सजेस्टेड देम, ओके भाई कि देख तेरे को 5 डैशबोर्ड लगेंगे पर तू पहले ये बनवा, हम्म। जब तेरा ये बन जाए चलने लगे फिर तू ये बनवा लेना। आप समझ रहे हो, सही है। ठीक है, मतलब हम्म। उसको उसको एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यू आप जो जा रहे हैं ना, इट्स फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट फॉर हाँ। वन टाइम और समथिंग, तभी वो आपको सही वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी वो आएगा, ठीक हम्म। है ना। अगर आप उसको गलत पलत बता दोगे, ठीक है, आप उसको बोल दोगे कि ठीक है चल भाई पैसे दे और बाद में देखेंगे, तो टाइप्स वो वाली पिच में काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप एक डिसीजन मेकर को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। तो यू हम्म। नीड टू बी काइंड ऑफ 80% वैल्यू ड्रिवन, देन ही थिंक्स ओके हाँ यार इसकी बात में दम है, ये समझ में आ रहा है मुझको, सो दैट्स हाउ थिंग्स गोज, ठीक है। चाहे वो यूएस में, हाँ यूएस में उसको भी पता है कि भाई ठीक है जो मैं वहाँ काम कराऊंगा 1 लाख का है, यहाँ पे 50,000 का हो जाएगा, ठीक है, तो वो तो उसको पता ही है पहले से। अच्छा। और फिर एक जो दूसरा एंगल जो बोला था, जो सीपीएफ फर्म्स और उनको करना है, तो उसके लिए फिर स्ट्रेटेजी अलग रखनी पड़ेगी हमको कि कैसे रखेंगे आप? सीपीए बम्स थोड़ा सा मुझे समझाइए, मतलब वो क्या करती हैं जैसे। जैसे इंडिया में सीए फर्म्स होती है ना, तो यूएसए में जो सीए फर्म्स होती है, तो उधर का वो काम है ना, आउटसोर्स करते हैं, वो उधर से मार्केटिंग और काम तो ले लेते हैं, बट ओके वो ओके समझ गया, इंडिया। वो अच्छा वो वाली जो जिनका काम आपको यहाँ आउटसोर्स करना है। यस, तो वो फर्म्स भी हमको तो उसमें क्या होता है कि होलसेल बिजनेस आता है पूरा, बट वो पूरा गेम ही अलग है। इसके अंदर मेरे को नहीं, लीड जनरेशन या ये कैसे होगी वो आइडिया नहीं है, बट नॉर्मली उस पे क्या है कि वो एक लॉन्ग टर्म और गेम रहता है, और वो पहले एक कुछ ट्रांच देते हैं, पहले 15 20 100 जो भी उनके एक सैंपल है पीवट, उसके लिए देते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे काम उनको लगता है वो ऊपर से और काम वो भेजते हैं वैसा। बेसिकली देखो इसमें क्या है ना, जितना मैंने उस फ्रेंड के साथ काम करके देखा है, हम इसमें आपके अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, बट वो लोग थोड़ा क्रेडिबल लोग को ढूंढते हैं कि जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर पाए, क्योंकि उनके क्लाइंट का डेटा होगा फलाना ढिमकाना ये सब होगा, तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे, वो एक प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, ये आपको इवेंट्स में बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब जब आप वन ऑन वन इन लोगों के साथ बातचीत करो, ठीक है। लिंक्डइन पे आपको डेटा मिल जाएगा, आउटरीच भी होगी, रिजल्ट भी आएगा, पर अच्छा रिजल्ट, क्योंकि वो जो मेरी फ्रेंड है वो तो दुबई तक जाती है, अलग अलग जगह जाती है यूएस में, तब जाके इन लोगों के साथ ट्रस्ट बना के लेके आती है उनको। क्यों? नहीं नहीं, तो क्योंकि हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम भी ट्रैवल यानी अभी कर रहे हैं। सो अभी नेक्स्ट स्टेज हमारा कैसा है, सितंबर अक्टूबर में हमारे 2 जने हम ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हैं, 2 जने यूके ट्रैवल कर रहे हैं। हम्म, तो then then उससे then it's पहले। good. Then it's good. Then what we can do, we can like line up the meetings, ठीक है ना, कि जो भी चलो मान लो जो भी आपका बंदा जा रहा है वहाँ पे उसके लिए मीटिंग्स लाइन अप कर दी, एंड वी टोल्ड देम ओके भाई हमारा बंदा आ रहा है, आप देख लो एक वाइट लेवल एग्रीमेंट कर लेंगे, ऐसा कुछ करके कर सकते हैं। क्योंकि इन सर्विसेज में मैंने जितनी उससे बात की है वो मुझे इतना ही समझ में आया कि पर्सनल टच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग उसके बिना वो ऐसे वो मतलब ऐसे नहीं बिलीव कर रहे कि भाई मेरे पैसे बच रहे हैं, उनको पैसे से ज़्यादा प्यार है उनका डेटा, उनका जो जो भी उनका वो कुछ रूल रूल होते होंगे पता नहीं, तो मुझे सही ज़्यादा है। नहीं आइडिया, बट ऐसा होता है उनका, तो वो हमेशा यही बोलती है मेरे को, जब भी वो फंस जाती बोलती है यार अब मुझे इवेंट से मीटिंग निकाल के दे, तो मैं उसको वही करके देता हूँ, ये है। ओके। अच्छा। तो आप नॉर्मली, हाँ हाँ, अब जैसे समझो कि मेरे को ये वाला, जैसे अपने आपने बोला कि आप इवेंट्स में और वो, तो वो मीटिंग्स और वो कैसे आप लाइन अप करवाते हो नॉर्मली, वो कैसे बेसिकली रहता है? उसमें अंदर क्या होता है, हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर बेसिकली वी लिसन टू द रेलेवेंट कीवर्ड्स जो भी उस इवेंट से या किसी से भी रिलेटेड है, ऑन दैट बेसिस वी गेट दी ट्रिगर्स एंड ऑल, उस ट्रिगर के बेसिस पे हम उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या वो आपके आईसीपी में आता है या नहीं आता है। अगर वो आईसीपी में आता है देन उसके हिसाब से एक पर्सनलाइज पिच बनती है, वो पिच बन के हमारी प्रोफाइल जो भी हमारी प्रोफाइल आपकी होगी उससे जाएगी, वो उससे हिट होगा, दैट्स हाउ।
और आप यानी मोड ऑफ मार्केटिंग नॉर्मली कैसे, यानी क्या क्या रहता है? जैसे एक तो लिंक्डइन आपने बोला, एक आपने इसमें कॉलिंग्स और वो सब भी सर्विसेज रहती है, क्या कैसा है नहीं यानी? नहीं, हम लिंक्डइन से आपको पॉजिटिव रिप्लाई ला के देंगे। ठीक है। ओके। उसके बाद वी प्रेफर, क्योंकि हाई टिकट साइज है, आप खुद हैंडल करो। ठीक है। हम कॉल पे ले जा सकते हैं, हम बात भी कर सकते हैं, पर क्लोज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यार वो टेक्निकल पूछेगा, हमें आता नहीं होगा। ठीक है। आप मेरे हम्म। से लिंक्डइन का कोई भी सवाल पूछ लो, मैं बता दूंगा। आप मेरे से मेरे सही है। समझ लो ना, मैं आपसे आपका ऑटोमेशन, ये आपका अकाउंट का पूछूंगा, आप बता दोगे। पर जैसे ही आप उल्टा हो जाए, तो फिर गाड़ी फंस जाएगी। तो तो वही। फिर तकलीफ आ जाएगी। हाँ, तो उससे क्या होगा कि मेरा क्लाइंट भी खराब होता है, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि भाई हम तभी काम कर पाएंगे जब आप सीरियसली हो। क्योंकि अगर देखो कोई पॉजिटिव रिप्लाई कर रहा है आपको, ठीक है, तो भाई आप ही को बताना चाहिए, है ना। हम कैसे कर सकते हैं? हमारा कोई, सही मान है। लो मैं भी किसी को लगाऊंगा भाई, आप सोचो ना, वो 15-20 हज़ार रुपए की सैलरी का कोई लड़का या लड़की होगा। ठीक है। उसको क्या पता वाइट बोर्ड डैशबोर्डिंग क्या होती है, फाउंडर को क्या पेन होगा क्या नहीं, वो समझ ही नहीं पाता, ये कितना भी सही है। समझा। तो वो सबसे बेस्ट है, हम आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ला के देंगे। ठीक है। आप उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स को क्लॉज कॉल में कन्वर्ट करो। ठीक है, डालो, मतलब वो सिंपल है। अगर उसका रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो पूछेगा ही कि भाई क्या चाहिए सर्विस, मतलब क्या है, तो हम्म। बस उसको बताओ। बताने के बाद वो अपने आप बोलेगा कि ठीक है चलो यार, कॉल वॉल पे आते हैं, कॉल पे जाओ, क्लोज करो। सही है। और अपने यानी नॉर्मली कमर्शियल साइड कैसे टर्म्स रहते हैं, क्या रहता है, यानी मोस्टली मेरे को एक थोड़ा आइडिया आइडिया क्या? मोस्टली जो चार्जेस रहते हैं वो हमारे 50,000 पर मंथ से शुरू होते हैं, जिसके अंदर हम महीने भर का कंटेंट डालते हैं। ठीक है। उसके अंदर हम महीने भर की अपने आईसीपी, जो आपके आईसीपी के हिसाब से लिसनिंग के थ्रू हम रीच आउट करते हैं। नॉर्मली आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रीमियम किया जाएगा, उस पर सेल्स नेविगेटर वगैरह लगा के। ठीक है। उसके ऊपर हम लोग चीज़ें रन करके, मतलब महीने की कॉल्स निकाल के देते हैं। नॉर्मली 3 महीनों के अंदर आप ये मान के रखो कि जैसे आपका निश है, क्योंकि उसमें तो वाइड ऑडियंस मिल जाएगी, तो आराम से 15 से 20 कॉल्स तो निकलनी चाहिए। ये है, डिपेंड, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा। ओके। और कंटेंट में कैसा नॉर्मली ये टेक्स्ट वाला ज्यादा जाता है कि नहीं मेरे नहीं, को उसमें उसमें वीडियोस और वो भी? हमारे हमारे केपीआईज कैसे होते हैं कि हमें बेसिकली ना इंप्रेशन हिट करने हैं। ठीक है। तो कभी कभी टेक्स्ट भी जाएगा, मतलब मोस्टली तो इमेजेस जा रही हैं। ठीक है, मतलब इमेजेस होंगी, उसके बाद करोजल होंगे, करोजल के बाद ये होगा कि फ्रेमवर्क रिलेटेड पोस्ट होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ डैशबोर्ड होगी, मतलब उसका पूरा एक वो पूरी कहानी होती है। कहानी के अंदर ये है, वट एवर उसका भी मैं आपको समझाता हूँ। एक फनल है, उस फनल में क्या होता है कि हम आपके जैसे कॉम्पिटिटर ढूंढेंगे कि जो पवन जो अचीव करना चाहते हैं वो किसने अचीव कर रखा है। उसका सारा कंटेंट निकालेंगे, उसका कंटेंट सारा स्क्रैप होगा, उसको स्क्रैप करने के बाद पूरा जो अपना सोनेट जो क्लाउड का मॉडल है वो पढ़ेगा। पढ़ने के बाद वो हमें बताएगा कि भाई फला बंदे ने ऐसा कुछ लिखा था तो बहुत बढ़िया गया, ऐसा कुछ लिखा था तो, मतलब उसके बेस, उसके विनिंग कंटेंट पे आपका कंटेंट डिजाइन होगा। उसके ऊपर फिर आपके थॉट्स लगेंगे, नहीं यार मैं ये नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को नहीं पता, कल को कोई पूछ ले तो मैं फंस जाऊं, या आपको लगता है कि यार बोल दो, जैसे कुछ बंदे होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, बोलते हैं यार इट्स, लेट्स पुश इट आउट हाँ। एंड लेट्स सी लाइक कि क्या आता है, फिर देखेंगे, ओके। वो अपना को संभाल लेंगे। तो उसके बेसिस पे मतलब, तो ये एक टेक्निक है कि पहले हम विनिंग कंटेंट ढूंढेंगे। ठीक है, हम री इन्वेंट नहीं करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे कि हमारा कंटेंट वायरल हो या हमारा कंटेंट के ऊपर इंप्रेशन आए, क्योंकि देखो हमारे कंटेंट पे हमें ज़्यादा इंप्रेशन नहीं चाहिए। पहले तो हमें अकाउंट एक्टिवेट करना है, हमें मेक श्योर करना है कि भाई हमारे अकाउंट पे कम से कम रेलिवेंट दिन के, मतलब महीने के 1,000, 2,000, 10,000 इंप्रेशन आ रहे हैं, 20,000 इंप्रेशन, मतलब वहाँ पहुँचाना है। फिर उसके बाद हमें कंटेंट की फनल, लीड फनल बनानी है। ठीक है। फिर हम किसी, कोई कोई क्लाइंट है जिनके लिए हम लोग लिंक्डइन पल्स करते हैं। ठीक है, जैसे लिंक्डइन पे पूरे जो सीरीज ऑफ आर्टिकल्स, जैसे आप ले सपोज डाल सकते हो कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ डैशबोर्डिंग फॉर ई कॉम फाउंडर। यस। ठीक है, या फिर आप सीरीज कर सकते हो डैशबोर्डिंग विद एआई। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि आजकल बहुत हैपनिंग है वो लोग, मतलब फाउंडर्स के लिए, तो उसमें आप अलग अलग डैशबोर्ड के बारे में ज्ञान दे सकते हो। तो उसमें क्या है कि वो वन टाइम आपने एक बार बैठे, आपने हमें को समझा दिया, हमने अपने आप बना दिया, आपको कंटेंट दे दिया, आपने अप्रूव कर दिया। सो दैट इज रियल वैल्यू। समझ रहे हो? तो जब रेलेवेंट बंदा आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो वो जरूर कॉल बुक करेगा, मतलब समझ रहे हो, उसको दिखेगा ना कि हाँ यार मुझे इसके साथ काम है, वो चीज। तो वो चीज पे अपन काम करते हैं। तो उसमें हमारा कंटेंट भी हमारा होगा, जो कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से डिजाइन होगा। आपके लिए आउटरीच जो हम डिजाइन करेंगे वो होगी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पहला होगा उससे अथॉरिटी बन रही है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, और दूसरा जो है उसके आउटबाउंड से आपको रिजल्ट्स बनेंगे आपके। ये है, 1 महीने की सर्विस में आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जिसको टारगेट करने वाले हो वो सीएक्सओ लेवल है। 1 महीने में वो जरूरी नहीं है वो हमारे लिए खाली बैठा हो, वो रिप्लाई कर दे, ये हमारे एक्सपीरियंस से हमें सही। पता है। ठीक है। तो अगर आप मतलब करना भी चाहो किसी के साथ भी करो, कोई भी एक्टिविटी करना, क्योंकि आप फाउंडर्स को जब टैप आउट करते हो देन इट इट टेक्स समवेयर अराउंड 60-70 दिन लगते हैं उसको समझाने में, क्योंकि उसके लिए एक नया फ्लो है ये। सही है। ये है। हाँ।
ये मैं कह सकता हूँ कि लिंक्डइन से आपका काम जरूर होगा, क्योंकि जिस ऑडियंस को आप टैप करना चाह रहे हो इट इज एक्टिव ऑन लिंक्डइन, एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म वही है। फिर उसके बाद आप अच्छा। फेसबुक वगैरह कर सकते हो, ये मतलब एड्स वगैरह कर सकते हो, बट मोस्टली तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। लिंक्डइन, हाँ सही है, सही है। नहीं, लिंक्डइन भी है फोकस। नहीं, और ईमेल्स, और आप अपना सिर्फ लिंक्डइन वाला ही है मोस्टली, आपका जो फोटे है वो लिंक्डइन ही है? मतलब हम करते ईमेल ऑटोमेशंस भी हैं, फेसबुक भी है, ठीक है। ओके। बट सी मैं आपको भी बता रहा हूँ, पोजीशनिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ईमेल करोगे, ठीक है, ईमेल में क्या दिखेगा उसे? एक ईमेल आईडी, हम्म। बस। अब सारा एफर्ट उसको लेना है कि वो ईमेल आईडी से डोमेन ढूंढेगा, डोमेन ढूंढ के फिर वो अथॉरिटी चेक करेगा। फिर आपको अपना डोमेन भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, आपको अपनी पीआर भी करनी पड़ेगी, आपको मार्केट में अपना नाम भी ठीक करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना, मतलब आप सर्च करोगे ना तुरंत कि भाई ये कौन है। सही। हाँ ठीक, सही है। भाई मैं तो फिर वो 25 काम और हैं, ठीक है। सो ये मतलब जो डिसीजन मेकिंग है ना, कि वो एक लीड से एक कॉल पे आएगा, इट गोज थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है। सही और है। वो हर एक चैनल अलग अलग तरीके को ट्रिगर करता है। जब लिंक्डइन का मैसेज देखेगा तो वो लिंक्डइन की प्रोफाइल देखेगा, हाँ। प्रोफाइल मजबूत लगी उसको, बोलेगा हाँ यार ये सॉलिड है, चलो बात करते हैं, ठीक है। हम्म। वो ये नहीं करेगा लाओ मैं इसकी वेबसाइट ढूंढूंगा जाके, उसके बिजनेस के, फिर मतलब वो कंपनी खोलेगा, कंपनी खोल के बिजनेस की वेबसाइट पे जाएगा, बोलेगा अच्छा हो, फिर गूगल, वो वहीं लिंक्डइन पेज देखेगा, आगे बढ़ जाएगा। ईमेल ओके। में क्या होता है, ईमेल में क्या है, ईमेल आप तब करो, ठीक है, जब पहली चीज आपके पास विनिंग ऑफर हो जाए। क्यों? क्योंकि ईमेल बहुत स्लो मेथड है। अच्छा। 1 महीना लगेगा आपको वार्म अप करने में, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम लगेगा उसको रिप्लाई आने में, रिस्पॉन्ड आने में। तो वो है, जैसे लिंक्डइन से आपको विनिंग ऑफर मिल जाए फिर आप ईमेल करो। और अगर आपने ओके। कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, और आपको विनिंग ऑफर भी नहीं पता, तो पहले 2-3 महीने आप फेसबुक एड्स कर लो, ठीक है। क्यों? फेसबुक एड्स एक तो फास्ट हैं, पैसा ज़्यादा ओके। लगेगा, पर वो फास्ट होते हैं, ठीक है। तुरंत आपकी अच्छा। गलती फलती ढूंढ के आपको दे देंगे, ठीक है। ओके। जब जब आपको अपनी गलती गलती मिल जाए तो उठा के फिर कर लेना ऑफलाइन। लिंक्डइन स्लो सही है। होता है पर हाई टिकट के लिए बहुत अच्छा है। फेसबुक हाई टिकट के लिए अच्छा नहीं है पर फास्ट होता है, तो वो आपको जल्दी जल्दी बता देगा कि भाई ये गलत है, मतलब आड़ा टेढ़ा चलेगा, ठीक है, पर काम कर जाएगा आपका, ठीक है। आप यानी वी गॉट आवर वे, हमको हमारा रास्ता पता चल जाएगा भाई, फेसबुक में हाँ, क्या गलतियां की है, और वो सेम हम एक्सपेरिमेंट करके लिंक्डइन पे हम डाल यस सकते हैं। यस, वो हो जाएगा ये। और अगर आपके पास बजट है तो दोनों कर लो। इनिशियली वो पहले कर लो 20-25 दिन, 1 महीना। और अगर मान लो वहां से भी देखो, वहां से भी प्रॉफिटेबल हो जाता, कोई ऐसा नहीं कि प्रॉफिटेबल नहीं होता, प्रॉफिटेबल हो जाता है, थोड़ा बर्न ज्यादा होता है। कि जहाँ यहाँ लिंक्डइन में मान लो 2 लाख रुपए लगने वाले थे, वहाँ शायद 3-3.5 लग जाए, पर ऐसा नहीं होगा कि 3-3.5 लाख डूब जाए, पर आएगा ओके। जरूर, पर थोड़ा कम आएगा। क्यों? क्योंकि वो इनिशियली आपको नहीं दिखेगा, वो इनिशियली आप टेस्टिंग कर रहे हो, ऑडियंस बना रहे हो, रीब्रांडिंग कर रहे हो, रीमार्केटिंग कर रहे हो, 25 चीजें कर रहे हो, ठीक है ना। हम्म। क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ तो प्रोफाइल है आपकी, यहाँ तो आपकी प्रोफाइल एक जो है वो लैंडिंग पेज का काम कर रही है, वहां तो कुछ नहीं है। वहां तो वो एक हम्म। मतलब एक कमर्शियल देख रहा है टीवी का, उसने देखा अरे हाँ। ऐड है, ओ चलो बात करते हैं, समझ रहे हो। तो वो है, जैसे हाँ। मान लो हमने कॉल बुक करी आज, कल आपने हमको मान लो 250 रुपये दिए होंगे, ठीक है। 250 रुपये आपने दिए, आपने आज मेरे साथ कॉल बुक करी, ऐसे ही हम आपके लिए वहां सेट करेंगे, ठीक है। कि आपकी एक फनल होगी, उसमें वो आके $10 देगा, बीस जो भी है, ठीक है, वो देगा, फिर वो समझेगा आपके साथ, वन ऑन कॉल 1 घंटे की बुक करेगा, आप उसके साथ समझोगे। फिर आप उसको बोलोगे ठीक है भाई चल, ये जो भी तेरे लिए बनता है वो, फिर वहां से आपको समझ में आएगा कि ओके, आफ्टर टेकिंग 20-30 कॉल्स यू गॉट टू नो कि हाँ यार ये मेरे को, ये मतलब जो मैं बेच रहा हूँ ये इसको समझ में भी आ रहा है और ये ले भी लेगा, बस। ओके। तो ऐसा कुछ बना सकते हो। तो मल्टीपल टेक्निक्स, मल्टीपल प्रोज एंड कॉन, टोटली डिपेंडिंग कि आप किस स्टेज पे रेडी हो। इफ यू आर रेडी टू स्केल फास्ट, गो फॉर फेसबुक। ओके ओके लेवल पे चलना है, आपको लगता है नहीं ठीक है मेरे पास अभी टाइम है, मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, मेरे पास पाइपलाइंस हैं, लिंक्डइन स्टार्ट करो। ओके। हाँ, लिंक्डइन 110% आपके लिए काम करेगा। थोड़ा स्लो, अथॉरिटी बनाने में टाइम लगेगा, करते रहोगे करते रहोगे करते। अभी कितने आपके वो हैं लिंक्डइन पे कनेक्शंस आपके? कनेक्शन से मैं देख लेता हूँ। लिंक्डइन। कनेक्शन 3973 कनेक्शंस दिख रहे अब आप सोचो इसका मतलब 400 लोग, 4,000 लोग तो आपको पहले से जानते हैं, हैं। ठीक है। हाँ। हम्म, एक मिनट, एक मिनट, 1 मिनट, मैंने ना बस ये, अब आप सोचो इन 4,000 लोगों तक आपने लास्ट कब बात करी?
नहीं, बात कुछ सच कुछ ज्यादा नहीं होती है। तो आप सोचो ना कि 4,000 लोग, अब 4,000 लोगों में हमारे पास एक ऑटोमेशन है, वो क्या करता है, सबसे पहले आपके कॉन्टेक्ट्स को निकालेगा। ठीक ओके। है। उनको फिर फिल्टर आउट करेगा फाउंडर CXO सब लेवल पे। फिर आपकी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से वो निकाल के दिखाएगा कि भाई देखो इतने इतने आपके काम के हैं। ओके। ठीक है। इनसे पहले बात कर लो। हम्म। समझ रहे हो। और फिर हाँ। तो अब इसमें क्या है कि 4,000 लोगों में कुछ तो काम के होंगे ना। मतलब मैं कह रहा हूँ हाँ। 10% लोग तो रियल होंगे ना, मतलब जो रियल सही। मतलब काइंड ऑफ जो वो मतलब आपके ICP में हिट होते हैं। मे बी पॉसिबल, यस। मतलब वही ना, क्योंकि इतने इरेलीवेंट तो नहीं होंगे किसी की भी प्रोफाइल में, 4,000 में तो इरेलीवेंट होता ही नहीं है, वो हो ही जाए। हाँ। तो आप सोच, तो इसी मैं वही समझा रहा हूँ कि क्योंकि हमने वो लिंक्डइन में इतना घुस घुसा के सब निकाल निकोल लिया है, तो वो हमको वो टेक्निक्स पता है कि जैसे जिस लेवल पे फाउंडर की अगर प्रोफाइल है, इतने कनेक्शंस हैं, तो उसको पहले ये करो। क्यों? हम्म। क्योंकि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अगर आउटरीच करते हो तो वो आउटरीच के साथ लिमिटेशन आती है पहले। सही है। यहाँ पे आपको लिमिटेशन नहीं मिलेगी, 4,000 लोग आप 2 महीनों में निपटा दोगे, वो जब निकालोगे उनको तो वो निकलेंगे, हम्म। 1,500 लोग निकलेंगे, 1,000 भी नहीं निकलेंगे, 500 600 लोग निकलेंगे। ठीक है। हाँ। तो वो चीज़ है। तो उस पे मैं आपको ना व्हाट्सएप पे भी हाई भेज देता हूँ, ये मेरे को मिल गया आपका नंबर। ठीक है। तो इस पे मतलब वही है कि आपको डिसाइड करना है, एक बार आप अपनी टीम के साथ बैठ लो। ठीक है, या अगर आपको चाहिए तो आप एक बार टीम से पूछ लो। और फिर एक और कॉल करते हैं कि विनिंग ऑफर। ठीक है, निश, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया UK बताया तो वो बहुत अच्छा रहेगा, US को नहीं करो। ठीक है। देन आपको किस मोड से जाना है, आप कितने रेडी हो टू इन्वेस्ट। ओके। ठीक है ना, अपने ओके। अपने के लिए इन्वेस्ट कितना करोगे। कि आपको फेसबुक ऐड से जाना है, जल्दी काम होगा। मैंने आपको वो दोनों चीज़ बताई, समझ लो। मैं बता। आपके उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो। फिर अपन एक और कॉल लेते हैं, नेक्स्ट वीक ले लो या कभी भी ले लो। फिर हम ठीक है। उसके आगे बात कर सकते हैं, क्योंकि है ना, आप समझ रहे हो, थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। इट्स सही नॉट है। अबाउट कि हम कितना पैसा लेंगे या आप कितना वो है। इट्स अबाउट कि पहले जो आपको चाहिए वो सॉर्ट हो जाए। सही है। ठीक है। और बाकी फिर मैं आपको एक क्वेश्चनेयर वगैरह भेज दूंगा। ठीक है ना, तो उससे जो आपकी मार्केट रिसर्च वाले जब आप डिसाइड कर लोगे ना, तो जो मार्केट रिसर्च वाली प्रॉब्लम है वो खत्म कर देंगे अपन। कि फेसबुक ठीक ऐड है। पर है ना, कि वो हमारे पास MCP वगैरह कनेक्टेड है, तो हम वहां से निकाल के देख लेंगे कि भाई कौन क्या चला रहा है। ठीक है, वो कर सकते हैं। तो आप एक बार ऐसा हो तो मेरे को यानी एक मेरे साइड से क्या क्या एक्शंस है वो मेरे को बता दीजिए। और सेकंड, फिर जब हम नेक्स्ट वीक एक बार और वापस कॉल कर लेते हैं, उसमें आई थिंक मोस्टली मुदित और ऋषभ भी ज्वाइन हो जाएंगे। और फिर और अभी हम क्या वेबसाइट भी रिवैम्प कर रहे हैं वापस अपनी। बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो वेबसाइट रिवैम्प कर रहे हैं, तो वो हम आपके इनपुट्स लेके और उसके अंदर भी क्या प्लस माइनस करना है वो देख के फिर हम आगे उसको भी चीजें देख लेंगे। और मोस्टली अभी हम यानी ये कल कल परसों की बात है, हम ट्रैवल का सोच रहे हैं। तो एक अभी हमको नेक्स्ट स्टेप पे तो ये है कि उधर पे हमको एक अच्छी प्रोफाइल हो जाएगी, ताकि लोगों से मिले तो वो यानी ऐसा ना हो कि एकदम अनजान हो और हमको थोड़ा टर्मिनोलॉजी पता हो, लोगों से मिले तो वो एक सही रह जाए वैसा। हाँ वही है कि थोड़ी तो वो। कॉल्स ले लोगे ना पहले से, तो आपको हाँ। मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया के 20 कॉल ले लो, UK जा रहे हो हाँ। तो UK की 20 कॉल ले लो। आपको हम्म, आधे ज़्यादा कहानी वहीं समझ में आ जाएगी। हाँ, बस तो वो एक कर लेते हैं। तो वो हम्म। प्लान एक थोड़ा देख लेते हैं, तो आप बताइएगा मेरे को कैसे नेक्स्ट स्टेप है, तो फिर अपने आगे उसको डन कर डन, लेते मैं हैं। आपको डिटेल्स डलवा दूंगा, या तो आप बताओ, ग्रुप बना देता हूँ मैं एक टीम के साथ। ठीक है। मैं हाँ, आप तो टीम के साथ ग्रुप बना दो। मैं आपको आपका व्हाट्सएप आ गया है, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ मुदित का और ऋषभ का। आप मुझे नंबर्स दे दो। हाँ, मैं नंबर्स आपको भेज रहा हूँ, मुदित अपन और ऋषभ। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, मतलब कहाँ पे हो? अहमदाबाद। अरे अहमदाबाद। मैं उधर रहता था। कलोल के आगे वडसर है ना, वडसर। कलोल पता है मेरे को, बड़सर बड़सर भी है, नाम सुना है बट ये एयरफोर्स कभी जान। एयरफोर्स वडसर है। ओके। एयरफोर्स स्टेशन वडसर है, मेरे पापा एयरफोर्स में थे तब। ओके। तो ओके। अभी आप दिल्ली। अभी तो यार मैं नोएडा आ गया, यहाँ पे ही वापस आ गया था। तो फिर यही ओके। वहाँ से खत्म, तो मैंने कहा चलो ये वहाँ रहा। मैं मतलब मैं जामनगर रहा हूँ 6 साल, और ओके। बड़सर रहा हूँ 3 साल, 3 4 साल। मतलब कोविड में तो अपन वहीं बंद हो गए थे। ये है, अच्छा। इसलिए तो अभी अहमदाबाद ही हूँ, फिर और किधर। अहमदाबाद अहमदाबाद है अपने कुछ क्लाइंट्स नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया है, उड़ीसा भी, मेरा उड़ीसा आना जाना रहता है। और अच्छा। दिल्ली में नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ हम दिल्ली आ ही रहे हैं, हमारा एक कोई ICI का AI का इवेंट है। तो हम अगर आगे बात चलती है और सब अच्छा चलता है तो आई थिंक वी कैन मीट ओवर देयर। हम 4 5 दिन है, तीनों ही पार्टनर्स उधर ही है, चार कोई पांच दिन उधर ही है। कोई टेंशन नहीं है, अगर बात नहीं भी होती आप तब भी मैसेज डालो।
ठीक है, तब भी नहीं मिलने नहीं तो नहीं, कहीं यानी भी। हाँ वो ठीक है, बढ़िया ही है, वो तो ऐसे भी और मिल रहे बस हैं। पता क्या होता है, हमने बस हमारा पता क्या है ना कि अब देखो जैसे 8 बज रहे हैं, ठीक है, हमारा काम खत्म हो चुका है, हम सिर्फ ये कॉल इसलिए लेते हैं क्योंकि जो लोग ना मतलब बिजनेस में फाइट मार रहे हैं, मतलब जो लोग ग्रो करना चाहते हैं, अपन उनके साथ बैठना चाहते हैं, ठीक है। ब- अपन कुछ आपसे समझेंगे, ठीक है। अब जैसे मुझे बहुत हम्म, डैशबोर्डिंग की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, मैं जिंदगी में सोचता अच्छा। हूँ कि डैशबोर्ड बना पाऊँ, पर बनता कुछ नहीं है मेरे से, ठीक है। कभी इधर कुछ बनाया, कभी लुकर में कुछ बनाया, ये वो, ठीक है, पर बनता कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्या है कि लोगों से मिलोगे, बात करोगे तो ही कुछ समझ में आएगा। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके डैशबोर्ड बताता हूँ किस टाइप हाँ का हाँ, बनाया है दिखाओ हमने। दिखाओ एक, दिखाओ। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ अभी आ गई, हाँ। और मैंने ना आपको एक मैसेज भेजा है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ए, एक मिनट, मैं ये डैशबोर्ड देख लेता हूँ, फिर व्हाट्सएप पे ही अच्छा देख लेता अच्छा, हूँ। ओके, पावर बी आई। तो ये देखिए एक डैशबोर्ड है। हम्म हाँ, इसके अंदर ये अभी सबसे पहले एक प्रोजेक्ट वाइज सेल्स है, तो यहाँ पे उसके 4 सेगमेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, वो बिजनेस 4 सेगमेंट कर रहा है। हम्म तो उस चारों सेगमेंट के बारे में, अगर आपको ये एज अ होल हो गया, फिर उसमें से कोई भी सेगमेंट सिलेक्ट करेंगे तो वो पता चल जाएगा। हम्म हाँ, फिर उसके अंदर बाजू में उसका सेल्स कितना है, एक्सपेंस कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ओवरहेड्स कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट भी प्रोजेक्ट वाइज है, यानी अगर अभी सबसे मेन जो आपको बोलूँ ना काम अगर आया ना, तो ये लोएस्ट मार्जिन प्रोजेक्ट वाला काम आता है, जहाँ पे फाउंडर को पता चलता है कि ये सबसे ज्यादा मेरा पैसा वेस्ट कर रहा है। हम्म तो इसके अंदर अगर मैं टॉप डाउन अप्रोच ले लेता हूँ, हम्म यानी सबसे ज्यादा लॉस किसमें हुआ, तो भाई सोलो प्रीनियर का PR9516 प्रोजेक्ट में हुआ है। हम्म तो उसमें देखो सेल्स तो 2.25 करोड़ की है, उसमें एक्सपेंस 1.57 करोड़ का है, ग्रॉस प्रॉफिट है। बट ओवरहेड्स उसके अंदर अवर्स लोगों ने या दूसरे रिसोर्स इतने यूज हो गए कि वो नॉर्मली 1.23 करोड़ मेरे को लॉस दे दिया उसने। हम्म अब मेरे को उसकी डिटेल करनी है कि 9516 क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं 9516 डालूंगा प्रोजेक्ट नंबर, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरा सैलरी वाला कौन सा बंदे की कितनी सैलरी यहाँ पे ज्यादा जा रही है, कौन सी ज्यादा जा रही है, वो भी एक सीधी पता चल जाएगी। गॉट इट, मतलब वही यहीं पे एक ही स्टेप पे उसको। और इस तरीके के डैशबोर्ड के लिए जो फाउंडर या जो आप बंदा देखते हो, वो मतलब उसकी कंपनी में कितने लोग होने चाहिए लगभग, क्या अमाउंट, क्योंकि अपने को ना इसमें वो भी देखना पड़ेगा टीम साइज वगैरह कितना है, या वो रेवेन्यू कितना कर रहा है, ठीक है। तो टीम साइज अगर आप देखने जाओ तो 15 से लेके 50 या 100 जने तक है ना, उसके लिए डैशबोर्ड काम का है। नहीं, और थोड़ा आपने और ना रिफाइन नहीं, 15 से तो नहीं। मैं तो सजेस्ट करूंगा जो फंड सीरीज ए उठा चुके हैं ना, ठीक है, हम्म, जिन्होंने सीरीज ए फंडिंग उठा ली है उन्हें चिपकाओ, ठीक है। हाँ तो वो उनको भी हाँ उनको दे सकते हैं, सही है। क्योंकि उनके वो पास तो पैसा है, ठीक है, अकल है नहीं उनके पास, क्योंकि वो बस वो वहाँ लगे हुए हैं। तो उनको आप हम्म, इस तरीके की डैशबोर्डिंग दे सकते हो। और सेल्स में नॉर्मली रेवेन्यू नॉर्मली 15-20 करोड़ के ऊपर कोई भी है ना, तो उसके हम्म काम का है। यानी हमने हमने ही लास्ट ईयर जो क्लाइंट के साथ काम किया था ना, हम्म नियरली हमने उसको 1 करोड़ के आसपास का पैसा बचा के दिया है। जो प्रोजेक्ट्स ब्लीड कर रहे थे ना, वो हमने ऑन द, ये तो डमी डेटा है, उनके अंदर हमने उनका पैसा बचा के दिया था वैसा। हाँ, तो ये जो है ना, ये सबसे बढ़िया लाइन है आपकी। तो हमारी पिच यहीं से होनी चाहिए कि भाई आप पवन को हायर करो एंड ही विल मेक श्योर कि साल का आपको 10 लाख रुपए बचा के देगा, 1 करोड़ रुपए बचा के देगा। हाँ, तो वो कैसे? चीजें कर सकते हैं। हाँ मतलब वो ये मार्केटिंग भाषा है, वो जैसे जैसे अपन मतलब वही है कि आप ग्रुप बना के अपन डिस्कस करते हैं, आप क्वेश्चनर वगैरह भरना और मतलब डिटेल में बताना मुझे, जैसे आपने अभी दिखाया तो हमें समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ऐसे इसमें भी ये फिर क्लाइंट वाइज कोई डेटा देखना हो या आपको वो भी देखना, सब ये तो फिल्टर्स है, वो बहुत सारी चीजें वो हो सकती है वैसा। मतलब वो तो जैसा मर्जी चाहो, जैसा वो मतलब प्रॉब्लम हाँ, बताएगा, आप उसके सोल्यूशन बताते जाओगे। और मार्केट में ऐसे डैशबोर्ड की क्या कॉस्टिंग रहती है, मंथली होती है या वन टाइम होती है? नहीं नहीं, इसमें अभी मंथली, अभी हमने जो क्लाइंट के लिए किया है ना, तो मंथली इसका नियरली हम 35,000 रुपीज ले रहे हैं। हम्म उसके अंदर 1 महीने की हमारी 1-2 घंटे की साथ में हम भी बैठते हैं उनके। हम्म और ये पूरा जो टास्क हो रहा है ना, ये उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के डेटा से ही टास्क हो रहा है। ओके, गॉट इट, यानी सो यानी हमने कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि उनको वापस दूसरी मेहनत करनी है, डेटा दूसरा भेजना है, वो जरूरी नहीं है। हमने एक उनका अकाउंटिंग डेटा ले लिया है, और 1-2 चीजें जहाँ पे टाइम और टाइम शीट जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं होती है, वो उसके लिए हमने एक अलग से क्लाउड पे लगा दिया और उनको सिंक करके हम देते हैं। तो अगर इसका, अगर आपको मैं यानी बैकएंड थोड़ा दिखाऊं ना, ये मेरा बैकएंड है, जो गॉट इट, काम हो रहा है ना।
हम्म बैकएंड हो रहा है, तो और वो वहां पे पावर बीआई, और अगर मैं, यानी ये तो डमी डेटा है, अगर हम्म एक्चुअल डेटा आपको दिखाऊं तो ये डेटा, ये एक्चुअली ऐसे सब डेटा आता है, ये सब हमारे समरीज बनती है। हम्म हाँ, ये सब एनपी वेरिएंस, जैसे ये एनपी वेरिएंस और ये सब बन रहा है वैसा, कि कौन से महीने में आपका सेल्स प्लस माइनस हुआ, या रेवेन्यू प्लस माइनस हुआ, या नेट प्रॉफिट प्लस माइनस हुआ, एक लेवल के ऊपर, कि ऐसा नहीं कि कम हो गया पर कुछ हमने 10% से ऊपर प्लस माइनस किया तो ग्रीन या रेड में हाईलाइट हो जाएगा। समझ गया, समझ गया। वही बेसिकली, सी, दिस इज वैल्यूबल, ठीक है। ये हमें कन्वे करना पड़ेगा। तो इसमें दो तरीके के लोग हैं, एक जिनको डैशबोर्डिंग पता है है हम्म। ना, पर उनको स्ट्रगल है कि भाई वो डैशबोर्ड क्लियर मतलब क्रैक नहीं कर पा रहे, ठीक है। सही है। दूसरे जिनको पता ही नहीं है, तो सबसे मतलब वही है कि जब अपन बैठेंगे ना करने, ठीक है, तो अपन को ये सब चीज उसे देखना पड़ेगा कि किसको पहले हिट करना है, किसको बाद में हिट करना है, ठीक है। हम्म। क्योंकि आपने बताया जैसे 30,000 रुपये ले रहा है वो, ठीक है, 30,000 रुपये हम लेंगे उनसे, 30,000 रुपये हो गए $300 टाइप्स, ठीक है, 300 $350, ठीक है। फॉरेन में नियरली वो स्टार्ट ही $1,000 से होता है। अच्छा चलो, हाँ मतलब चलो मान लो $1,000 हो गया, ठीक है। तो हमें वो दिखाना है कि भाई तू हमें $12,000 देगा साल के, ठीक है, इन रिटर्न यू विल सेव दिस मच, ओके। ठीक है। तो मतलब वो पिच कैसे रखनी है, क्या है, ठीक है, कौन कितना कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हम गूगल सर्च भी लगा सकते हैं, जब जैसे हम ये बोल रहे हैं ना कि जिनको पहले से पता है, तो हम पावर बीआई के डैशबोर्ड जो ढूंढ रहा है डायरेक्टली उसको रख सकते हैं, क्योंकि $1,000 है, आपकी टिकट साइज $12,000 है। मतलब अगर ले सपोज $500 में भी आपको ये क्लोज होता है, ठीक है, तो गूगल सर्च ऐड चलाओ ना, आप समझ रहे हो, ओके। वहां से चला के कॉल बुक करो, उसको लेके आओ, उसको समझाओ और उसे क्लोज हम्म। करो, ठीक है। तो टोटली, ठीक है। क्योंकि मैं तो इवेंट्स में भी देखा हूँ लोग बूथ लगाते हैं इस तरीके के डैशबोर्ड्स का, मतलब डैशबोर्डिंग की कंपनीज होती हैं वो बूथ लगाती हैं, समझाती हैं लोगों को, ठीक है। हम्म। तो वो है, तो इस तरीके से वो आप काम बना सकते हो जाएगा। मतलब ये मतलब मेरे हिसाब से सी, जैसे पावर बीआई आपके पास भी नहीं, ऐसी और तीन सर्विसेज, दो मतलब एक लो टिकट और दो हाई टिकट ढूंढ लो, ठीक है। ठीक है। बस कि जहाँ ठीक है। से अगर नहीं मान रहा तो भाई उसे बोल दो कि चलो ये ले लेना, अगर मान रहा है तो फिर उसे ये ले ले, बस। ये हाँ, तो बाकी वैसे कुछ आपको कर। पार्टनरशिप चाहिए, वो जैसे आप जाओगे तो एड्स के थ्रू और उसके थ्रू हम वैसे ही अरेंज करा, मीटिंग्स जो है जो अलग अलग फर्म से वो वैसे हो जाएंगी, तो ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कोई क्वेश्चन है आपका तो बताइए, मैं बता नहीं, देता बस ठीक है, ये नेक्स्ट वापस एक बार मिल लेते हैं, वापस हूँ। समझ लेते हैं कैसा है, फिर आगे अपने प्लानिंग कर लेते हैं आगे का। डन डन। मैं ना आपको एक एक मैंने ना आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, वो आपकी थोड़ी सी हेल्प मुझे ये चाहिए होगी बस, कि हमारा एक रेजर पे अकाउंट है जो मतलब हमसे ना वेरीफाई करवा रहा है कि ये जो पेमेंट्स हैं जो जो आपने की है वो मतलब आपको कैसी लगी, मतलब वो वेरीफाइड है कि मतलब आपने सही कॉज ओके। के लिए पैसे दिए, मतलब उसको ये लग रहा है कि हमने पैसे ले लिए ठीक है, कि हमने वो हमारा अकाउंट उसने होल्ड कर रखा, तो बस आप ना उस अपनी मेल आईडी से मेल कर दीजिएगा हमें, कौन सी मेल आईडी पे करूँ? वही सेम जिस पे आपने बुक किया ना, कॉन्टैक्ट ये जीएच कैम्प वाली, मैं आपको वो भी भेज दे रहा हूँ। हाँ, वो मेरे को एक भेज दो, क्योंकि क्या एक्चुअली हम क्या, सो मैं बहुत सारे चीजें मैं नॉर्मली ऑनलाइन और ये सब देख कर रहता हूँ, तो मेरे को याद इतना नहीं रहता है। मैंने आपको भेज दिया वो भी, ठीक है। ओके। तो बस ये कॉपी पेस्ट करके भेज देना। तो उन लोग, अरे वो ओके। हुआ क्या, एक बंदा आया, उसने पेमेंट भी की पहले, फिर ओके। रिजर्व पे में डाल दिया कि हमें नहीं चाहिए, मैंने गलत पेमेंट की है, फिर आके ओके। हमसे ओके। सर्विस भी ले ली, और राइट नाउ अच्छा। ही इज पेइंग अस 45,000 पर मंथ। पर अब वो बोल रहा है कि सॉरी, अब वो मेल भी लिख रहा है कि सॉरी मैंने गलती से कर दिया, ठीक है। अब रेजर पे बोल रहा है नहीं, रेजर पे मान के बैठा है कि नहीं, बोल रहा है चार और प्रूफ लेके आओ कि तुम फ्रॉड नहीं कर। मैंने कहा भाई 150 रुपए लेके कहाँ जाऊंगा मैं, मतलब दिन में दो सौ हाँ, डेढ़ नहीं। सौ रुपए लेके क्या करूंगा मैं। तो कह रहा नहीं, 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 सही। इट्स अवर पॉलिसी। मैंने कहा भाई तुम बड़े अजीब हो। मैंने कहा मैं बेकार नहीं लगूंगा, मैं लोगों को ये बोलता रहूं कि भाई तुम मेरे को मेल करो। तो कह रहे कि हाँ। तुम ना स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने उससे यही पूछा, मैं हाँ। 150 रुपए लेके दिन में मैं हाँ। 4 बार 600 रुपए का क्या करूंगा, और 600 रुपए लेने के लिए हाँ। मुझे जो ऐड चलाना पड़ रहा है वो कौन देगा। तो वही है, हाँ। तो वही है, तो उनकी हाँ, पॉलिसी। सही। ठीक है, ठीक है, चलो पवन भाई मेल बढ़िया लगा मिलके। मैंने ठीक है, मैंने मेल कर दिया है। डन डन, चलो थैंक्स। अपने मिलते हैं वापस। चलिए, पक्का, ओके, आप ओके। मुझे, मैं बाय। अभी ग्रुप बना के ऐड कर देता हूँ और फिर ये डाल देता ठीक है। हूँ, ठीक है। ओके। ओके भाई, ओके। बाय बाय। बाय बाय।